Hello and welcome, friends. So, one more session. Now, this time we are in the second part for human health and diseases PYQ, NEET, and AIMS. So, this is the name of the session. So, let us start the session. So, friends, as I told you that this is the second session. So, already some 42 questions we have completed, 42 more left. So, total 50 questions are there from NEET and then some 34 questions are there from AIMS. So in this way, out of 84 questions, 50% of the question we have completed yesterday, right? Now it is the time to go for the next 42 question. Okay, so without wasting any more time on this preface, because at the end we have some such stuff which some of you hate, which some of you wait. So let us start the session. So here is the question number 43 on your screen. So let us read it. Identify the molecule and show A and B shown below and select the right option giving the source and use. So we can see here two types of molecule, molecule A and molecule B. So first thing to identify is the first challenge, and then we could go for its source and then use. Okay, so the structure shown here in the first and second. So we can see here in the table like cocaine, heroin, then cannabinoid and morphine. So looking at the first, now those who have attended this session, which one, that recap session. Okay, so I remember I have drawn some yum like structure here. तो जिनको याद है उनको हो सकता है कि याद हो. सो ये यम ऐसे मैंने ड्रॉ किया था. सो दिस यम फॉर मॉर्फिन. सो ये स्ट्रक्चर बन गया मॉर्फिन का. ठीक है. एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इट टोटल हाउ इट लुक्स. तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में भी अगर देखते हैं तो इट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर द कैनाबिनॉइड्स. तो यहाँ पर एक रफली हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा उल्टा गिरा हुआ, ठीक है, ऐसा सी लाइक स्ट्रक्चर है. सो दिस सी रिप्रेजेंट्स फॉर कैनाबिनॉइड्स. ओके, सो दिस इज जस्ट जनरल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर दिया है. पहले तो ये चैलेंज है कि हम इसको आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें का ए जो है वो मॉर्फिन है और बी जो है वो कैनाबिनॉइड्स है. तो यहाँ पर फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इनका तो कोई चांस नहीं बनता. फिर बचते ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो जिसमें बी को कैनाबिनॉइड्स और ए को मॉर्फिन, दोनों को ठीक से बोला गया. लेकिन कैनाबिनॉइड्स का सोर्स एट्रोपा बेलाडोना नहीं है, उसका सोर्स क्या है, कैनाबिस सैटिवस. ठीक है, तो ये फिर इस तरीके से गलत हो गया, राइट. अब ये हेलुसिनेशन, ये तो बात की बातें हो गई. मॉर्फिन को अगर देखते हैं, पापा और सोमनीफेरम, ये बिल्कुल ठीक है. ओपियोइड में आता है मॉर्फिन, तो उसका जो सोर्स है पापा और सोमनीफेरम. एंड इट्स यूज, मॉर्फिन का यूज जो है वो सीडेटिव एंड पेन किलर. सीडेटिव माने स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है. और पर्टिकुलरली जिनमें सर्जरी हुई है, तो जिनको काफ़ी सारे पेन्स रहते हैं, यातनाएं रहती है, तो वो कम करने के लिए मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन डी इज फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन number 44. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains. So already we have solved this kind of question. It is immunoglobulin A. Okay, let me pick up the right color. Yes, it is. So it is immunoglobulin A. Already we have solved this kind of question, the class of antibody that was, isn't it? Next, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? Again, same thing. Amir Samir, I have told you. So this is cell mediated immune response. I hope you remember these things. ठीक है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को ये याद है. एंड लुक एट द ईयर ऑफ द क्वेश्चन, 2019 के नीट में, मतलब लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफॉइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफॉइड. सो लुक एट द ऑप्शन. एक तो इसमें हमें क्या ढूंढना है कि टाइफॉइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म, और फिर दूसरा जो ढूंढना है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट. तो पहला ऑप्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, स्पीच इज इटसेल्फ सजेस्ट. तो ये तो गलत जवाब नहीं हो सकता है पहला.
मतलब सही नहीं हो सकता है, गलत है। सैल्मोनेला टाइफी इज फाइन बट एंथ्रॉन टेस्ट इज देयर, ठीक है, और यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, सो सी इज फाइन, सी इज द राइट आंसर। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इट इज फॉर मलेरिया। एंड यूटीआई टेस्ट, ये यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर कुछ है तो उसको टेस्ट करने के लिए। एंड दिस सेकेंड ऑप्शन में ये जो एंथ्रॉन टेस्ट आता है ये कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, तो ये बी और डी ये भी जवाब नहीं हो सकते, ओनली सैल्मोनेला टाइफी इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। नाउ दिस इज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट, इट इज गिवन देयर दैट इट इज एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज एनसीईआरटी से पिकअप किया हुआ क्वेश्चन लगता है। Then question number 48, which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? Isn't it given there in NCERT? Latex, ठीक है, latex क्या होता है? जैसे मिल्की सिक्रेशन होता है कई सारे प्लांट में, शायद आप लोगों ने वो जिसे रुचकी कहते हैं उसमें से दूध निकलता है उसके पत्तों में से, सो दैट इज द latex, ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, in which disease mosquito transmitted pathogen causes chronic inflammation of lymphatic vessel? तो ये भी क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, इट इज़ रिगार्डिंग एलिफेंटाइसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज फिलेरियासिस। तो उसमें जो है लोअर लिम्स माने पैरों में जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिम्फ जमा हो जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जमा हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट एलिफेंट फूड, ओके, एलिफेंट लाइक फूड, सो दैट इज एलिफेंटाइसिस। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज? तो इसमें का कौन सा डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है? तो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है? व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज? तो ऑटो इम्यून डिसीज क्या है कि जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम अपनी खुद के बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो इसमें अल्जाइमर डिसीज क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस एंड देन वाइटिलिगो क्या है। सो लुक एट दिस 3। अभी यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा है, ये आपको समझना होगा। कौन सा है ये नहीं पूछा है, नॉट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्जाइमर डिसीज इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसीज, इट इज प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, अल्जाइमर डिसीज विच इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया एंड ऑल दैट, okay. Rheumatoid arthritis, it is a kind of joint pain. Then psoriasis, you know, this is a skin disorder, and vitiligo, it is also not skin disorder, vitiligo, it is related with the whitish patches, okay. So ये पूरे के तीनों all these 3 ये कौन से है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन सा नहीं है? वो है अल्जाइमर डिसीज, ओल्ड एज में होने वाला अल्जाइमर का डिसीज है, ओके, विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून। नेक्स्ट, सो हियर ऑनवर्ड, यस, एम्स के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। सम 34 क्वेश्चंस आर देयर। नाउ दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2011 इज अ बिट ऑड क्वेश्चन, ओके। बेसिकली चैप्टर का नाम तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, लेकिन ये 2011 में जो है कंटेंट जो था अलग तरीके था, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, क्योंकि मैंने जो है अभी तक पूरे जितने PYQ सेशन अपने जितने भी एपिसोड हुए उसमें क्या किया कि 2011 से लेकर के है पूरे क्वेश्चंस एम्स और नीट दोनों के उठाए हैं। सो सम टाइम यू माइट हैव एक्सपीरियंस that some question are totally out of the context, particularly those which are before 2013 2013 के अगर आप पहले के क्वेश्चन देखते हो तो वो काफ़ी बार आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत रेयरली, वेरी फ्यू टाइम्स दे आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी, ओके। आई कैन नॉट डिनाई कम्प्लीटली कि ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2013 के बाद पूरा एकदम स्वर्ग हो गया, टोटल हेवनली एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी, नो, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जो प्रोपोर्शन था वो जो है वो 2013 के बाद में बहुत कम होते गए, और 2018-19 अगर आप देखते हो तो 99% आई शुड से इट इज विद इन द एनसीईआरटी। नेक्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एम्स से कैटल फीड विद द स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर है विच कंटेन डाइक्यूमेरॉल। अब ये पूरी चीजें नहीं है आपके लिए। नाउ स्वीट क्लोवर इट इज एन व्हाट यू कैन से, ये एक टाइप का घास है, ठीक है, ग्रास है या फिर घास जिसे आप बोल सकते हैं, जो कैटल्स को फीड किया जाता है, ठीक है, स्वीट क्लोवर। स्पॉइल्ड का मतलब क्या कि जिसका डिकम्पोजिशन या फिर जिसकी वेदरिंग बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन या डीके कह सकते हो, सड़ चुका है, ऐसा अगर है का मतलब क्या होता है, इसे आप फॉरेज बोल सकते हो या फिर फॉडर बोल सकते हो, हे का मतलब फॉडर। तो ऐसा अगर कैटल को खिला दिया जाता है तो इसमें एक कंपोनेंट है डाइक्यूमेरॉल। अब बेसिकली उसमें डाइक्यूमेरॉल होता नहीं, उसमें होता है खाली क्यूमेरॉल,
राइट। लेकिन ये डिकम्पोजिशन या वेदरिंग की वजह से इसमें वो क्यूमेरॉल से बन जाता है डायक्यूमेरॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ऑप्शंस आर हेल्दियर ड्यू टू गुड डाइट, कैच इन्फेक्शंस इजीली, may suffer from vitamin K deficiency and prolonged bleeding, and last option may suffer from beriberi due to deficiency of vitamin D. अभी आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो I directly tell you the right answer is C. How? Now, original component present in the sweet clover is cumarol, which is not poisonous, not problematic to the cattle. ओरिजिनल, अगर अच्छी हालत में ये स्वीट क्लोवर का जो ग्रास है वो अगर खिलाया जाता है तो उसमें जो क्यूमेरल है वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। लेकिन अगर से इसको फंगस लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें ये क्यूमेरल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइक्यूमेरॉल. Now this dicumarol, it inhibit or it interrupt the process of vitamin K synthesis. विटामिन के तैयार होने की जो प्रोसेस है उसमें ये डाइक्यूमेरॉल जो है वो उसमें एक तरीके का इंटरप्शन तैयार कर देता है. अब अगर विटामिन के डिफिशियंसी हो जाएगी किसी कैटल में, तो आप जानते हैं विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अब वो अगर मिसिंग होगा और फिर ऐसे हालत में अगर कैटल को कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजुरी हो जाती है, देन इट विल कॉज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग. राइट, इन दिस वे सी इज द राइट आंसर. Next question. Opium is obtained from. Options are Oryza sativa, Coffea arabica, Thea sinensis and Papaver somniferum. Just in the today's first question हमने अभी ये सॉल्व किया था. It is Papaver somniferum. Right? Opioid, opiums. Okay. अफीम भी हम कहते हैं उसे. Next question. Match the following bacteria with the disease. अभी यहाँ पर match the pair करने का है. Look at the options. Treponema pallidum, Yersinia pestis, बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो. तो अगर आपको चीज़ें ठीक से थोड़ी बहुत भी पता है तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप कर लोगे. सो विब्रियो कॉलरा, ये हमने नाम सुना है. सो विब्रियो गोज टू कॉलरी. ठीक है. देन अगर यहाँ से ठीक से देखोगे ऑप्शन सी में एंथ्रेसिस, इट विल गो फॉर एंथ्रैक्स, इजंट इट? इस तरीके से. देन यर्सेनिया पेस्टिस, इट इज द बैक्टीरिया फॉर द प्लेग. एंड the Treponema pallidum, it is for the syphilis. अभी आपको इसमें से 2 या 3 भी पता है तो भी आप आंसर दे सकते हो. तो क्या बनेगा आंसर? ट्रिपोनिमा कहा जा रहा है 3 की तरफ, मतलब कौन गलत हो गया? बी और डी गलत हो गए, बचा कौन? ए और सी. अभी बी पे आंसर मिल जाएगा. यर्सेनिया पेस्टिस कहाँ जा रहा है? एक की तरफ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, लेट मी पिक अप द राइट कलर. यस, ए इज द राइट आंसर. Next question. Which of the following is a correct match? Bhang analgesic, cocaine opiate narcotics, morphine hallucinogen, barbiturate tranquilizer. तो अब यहाँ पे देखना होगा हमें कि करेक्ट मैच मतलब उसका कुछ इसमें क्या है कि इफेक्ट दिया है और कुछ इसमें क्या दिया है, उसमें इफेक्ट नहीं तो उसकी कैटेगरी हमें लिखवा के दी है. तो हमें उसका जो रोल है वो भी पता होना चाहिए. और जो दूसरी हम चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका रोल भी है और उसका क्लास, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. राइट. तो यहाँ पर अगर ठीक से देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? भांग को एनाल्जेसिक बोला है. तो बेसिकली भांग इज नॉट एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर बोल सकते हैं आप. इट इज़ नॉट पेन किलर, यू कैन से इट इज़ अ साइको एक्टिव ड्रग. ओके, साइको एक्टिव ड्रग है भांग. आपने सुना होगा जब होली आती है तो होली के जो दूसरे दिन जो रंग खेला जाता है तब ये भांग लेते हैं लोग. तो वो साइको एक्टिव ड्रग है. दूसरा ऑप्शन है कोकेन ओपिएट नार्कोटिक्स. ठीक है. तो कोकेन ओपिएट में आता है क्या? अफीम में आता है क्या? नो, इट इज द टाइप ऑफ कोका अल्कलॉइड, नॉट एन ओपिएट. ओके, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग पेयर. देन मॉर्फिन इज सेड टू बी हेलुसिनोजन इन थर्ड ऑप्शन. नो, मॉर्फिन जो है अभी हमने किसी फर्स्ट क्वेश्चन में, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था. इट इज पेन रिलीवर. ओके, इट इज नॉट हेलुसिनोजन. लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो है बार्बिटरेट फॉर ट्रैंक्विलाइजर. यस. नाउ बार्बिटरेट जो है वो सिडेटिव या ट्रैंक्विलाइजर दोनों तौर पर इसका यूज होता है. क्या होता है ट्रैंक्विलाइजर और सिडेटिव? सिडेटिव माने स्लीप इंड्यूसिंग. ठीक है. एंड ट्रैंक्विलाइजर, दीज आर यू कैन से स्लीप इंड्यूसिंग और विच कैन क्रिएट कामनेस इन द माइंड. ठीक है, पूरी शांति जिसे कहते हैं, मन की शांति. मतलब थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स इफ दे आर कमिंग इन द माइंड, वी गेट टोटली डिस्टर्ब. इन फैक्ट हम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. सो दीज आर द बार्बिटरेट्स. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर. सो दे कैन कॉज माइल्ड सिडेशन.
or if dose is increased, it can cause total anesthesia. Basically barbiturate is a worst kind of drug, believe me. So now somebody will say, sir, do you have experience? No, nothing like that, I have heard from the news. Okay, so option D is the only here right one, so let us tick mark. This is the only right pair. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शंस आर माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड फोर्थ वन गाउट। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून, अभी मैंने बोला था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटो इम्यून मतलब खुद की इम्यूनिटी सिस्टम खुद के अगेंस्ट काम कर रही है, तो हम बोलते हैं उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब गाउट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल वो जॉइंट में जमा होने वाला। तो यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी सिस्टम खुद के खिलाफ काम कर रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल डिजनरेशन की केस है, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पर बोन में उसका कैल्शियम लूज कर जाते हैं बोन। देन माइस्थेनिया ग्रेविस, व्हाट अबाउट दिस माइस्थेनिया ग्रेविस। तो बेसिकली से आपको समझना होगा, जो स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल के लिए जो क्या कहते हैं उसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने लगती है अपनी खुद की बॉडी, एंड दैट इज व्हाई इट कॉजेस वीकनेस इन द स्केलेटल मसल एंड ओवरऑल वीकनेस। सो दिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, सो राइट आंसर हियर इट विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is based upon the principle of antigen antibody interaction। तो अच्छा क्वेश्चन है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सा जो दिए गए टेक्निक्स है वो डिपेंड करते हैं। ऑप्शंस आर पीसीआर, एलाइजा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरएनए। ओके, तो आरएनए ये तो कोई बात नहीं बनती, तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे भी निकल जा रहा है, बचते हैं पीसीआर, एलाइजा एंड आरडीएनए। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी आपने अगर चैप्टर इसके बाद में जो आने वाला है बायोटेक का जो यूनिट है उसमें से आप आसानी से समझ सकते हो, वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का कहीं पर भी नाम नहीं आता है। बचा है फिर पीसीआर। पीसीआर ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है, पॉलीमरेशन रिएक्शन, डीएनए की अगर क्वांटिटी कम है तो उसका एम्प्लीफिकेशन करवाने के लिए पीसीआर यूज़ किया जाता है। बचा एलाइजा कि जो एचआईवी के टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जाने वाली कंफर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल सकते हैं आप उसे। तो एलाइजा में क्या किया जाता है, मोस्टली द क्लासिकल फॉर्म ऑफ एलाइजा जो है एलाइजा टेस्ट, उसमें क्या किया जाता है, दैट एक ऐसा कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है जो एचआईवी के एंटीजन है उस एचआईवी के एंटीजन का इस तरीके से कोट दिया है, छोटे से वेसल्स बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, कंटेनर या वेसल। तो इसके पूरे वॉल पर इनर एक कोट या लेयर दिया है, किस चीज़ का है ये, दीज आर द एचआईवी स्पेसिफिक एंटीजन। अब इसमें जो है मिला दिया जाता है क्या, ब्लड फ्रॉम द सस्पेक्टेड पेशेंट। अब जिस पर हमें मतलब किसी पेशेंट ने दिया है कि भाई उसे एचआईवी है क्या नहीं चेक करने के लिए, तो उसका ब्लड जो है यहाँ पर मिला दिया जाता है। अब अगर उस बंदे को, उस इंसान को अगर एचआईवी है, एड्स है, तो उसके खून में कंपलसरी एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होने ही होने हैं, क्योंकि ये बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन है कि जैसे ही एंटीजन तैयार होते हैं तो वैसे ही एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर एंटीबॉडी है तो वो क्या हो जाएंगे, एंटीजन तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने लगा के रखा है, तो एंटीबॉडीज जो है इसके ऊपर इस तरीके से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें का जो ब्लड है उसे हम हटा देंगे, ठीक है। अब ब्लड हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ इधर इस तरीके से एंटीजन है और इस तरीके से ये एंटीबॉडी अटैच। अब इसमें ब्लड तो नहीं रहा, ब्लड तो हमने हटा दिया इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ एंजाइम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक हम कुछ खास ऐसे एंजाइम ऐड करते हैं, ठीक है, कि जिनका सबस्ट्रेट ये एंटीजन एंटीबॉडी है। ऐसे एंजाइम ऐड करते हैं कि जिनका सबस्ट्रेट ये इनका एंजाइम एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। अब इमेजिन करते हैं दो कंटेनर, अब एक जो एचआईवी निगेटिव था तो वहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर एंटीबॉडी रहेगी क्या, नहीं। अब ये हम कहते हैं निगेटिव और इसे कहेंगे हम चलो पॉजिटिव। तो एंजाइम दोनों इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब जब एंजाइम पॉजिटिव वाले इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर रिएक्शन होती है, कलर तैयार होता है, और यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलेगा, नो कलर एट ऑल।
तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये इंसान HIV पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके खून में जो है वो HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडीज थे। सो इन दिस वे ELISA इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल A एंड B। ठीक है, अभी फिर एक बार वही क्वेश्चन है लगभग, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्या बोल सकते हो आप? कुछ है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए स्कोप? ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। आई टोल्ड यू कि 2011 के, ये 12-13 के कुछ क्वेश्चन है कि जो बहुत ज़्यादा, अभी ये देखिए 2014-15 में आए वाला consecutive year सेम क्वेश्चन एंड सेम आंसर, इट इज मॉर्फिन, पापावर सोमनिफेरम, सेडेटिव एंड पेन किलर। ठीक है, वही चीज़ें, इसलिए डबल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चरेला और येसिनिया पेस्टिस कॉजल एजेंट ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो प्लेग का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इट इज़ पास्चरेला और येसिनिया पेस्टिस, वो किस चीज़ से, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? सो ऑप्शंस आर साइमेक्स, जीनोसाइला, देन पेडिक्यूलस एंड एडिस। ठीक है, तो साइमेक्स क्या होते हैं? साइमेक्स, ओके, कलर छूट जाते हैं अंदर अंदर। सो साइमेक्स इसका है, ये दीज आर बेड बग्स। बेड बग्स जानते हैं ना। दूसरा जीनोसाइला, अब ये जीनोसाइला क्या है? जीनोसाइला इसे हम रैट प्लिया कहते हैं, रैट प्लिया। और पेडिक्यूलस, दीज आर, ये आपके पहचान के, दीज आर हेड एंड बॉडी लाइस। लाइस समझते हैं ना आप, जुए। ठीक है, तो ये है एडिस मॉस्किटो। ये तो आपको पता है, डेंगू को वगैरह ट्रांसफर करने वाला, डेंगू एंड इवन फिलारियासिस, एलिफेंटाइसिस, उसे भी ट्रांसफर करने वाला। तो यहाँ पर सबको पता है कि प्लेग जो है वो रेड प्लिया से स्प्रेड होता है, लेकिन उसका नाम क्या है? जीनोसाइला। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, जर्मन मीसल, रूबेला वायरस, हुपिंग कफ, बॉर्डिटेला, पर्ट्यूसिस, टेटानस, पास्चरेला पेस्टिस। क्या बोलोगे? टेटानस का पास्चरेला पेस्टिस है क्या? अभी तो हमने देखा पास्चरेला पेस्टिस इट इज फॉर प्लेग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? Obviously it is fourth one. So what is the right causal organism for then tetanus? tetanus का सही क्या है? पास्चरेला पेस्टिस अगर नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, तो लास्ट वाला है नॉट करेक्टली मैच। तो टेटानस का पास्चरेला पेस्टिस नहीं है, तो क्या है फिर? इट इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। इट इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। कैन आई राइट? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी should be like this. Okay, so quite simple, D is the right answer but wrong match. Okay, next, human immunodeficiency virus HIV has a protein coat and a genetic material which is। तो HIV जो है human immunodeficiency virus, उसका genetic material क्या है? वो retrovirus है, तो क्या रहेगा? single stranded RNA। quite simple. Next question, which one of the following pair of disease is viral and transmitted by mosquito? तो दो कंडीशंस दिए हैं हमें, एक तो वो डिसीज वायरल होना चाहिए वायरस के वजह से, और दूसरा उसका ट्रांसफर जो है मॉस्किटो के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एलिफेंटाइसिस ये वर्म का है, भले ही इसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो के थ्रू हो। ठीक है, डेंगू ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन एलिफेंटाइसिस नहीं करता। येलो फीवर करेगा लेकिन स्लीपिंग सिकनेस नहीं करेगा, प्रोटोजोन वाला हो जाएगा वो। देन एलिफेंटाइसिस, सॉरी माय करेक्शन, एंसेफेलाइटिस। अब एंसेफेलाइटिस का ऐसा है कि ये प्रोटोजोन वायरल और इवन बैक्टीरिया कैन कॉज दिस एंसेफेलाइटिस। ब्रेन का इन्फेक्शन है, किसी लास्ट के एपिसोड में शायद आया था। ठीक है, तो इसका जो है वो ट्रांसफर मॉस्किटो के थ्रू नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, येलो फीवर एंड डेंगू, दिस इज द राइट वन। सो अगर आप पूरे अगर एम्स या नीट के देखते हो तो ये सेम क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, सिर्फ ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ये बदलते गए, ये ऑप्शन हमेशा वेरी कर रहे हैं। ओके, सिर्फ ये ऑप्शन हमेशा कांस्टेंट है। सो यू कैन कंसिडर दैट दिस वन इज टू मच important. Yellow fever and dengue, they are viral as well as transmitted by mosquito. Next one, fibroid. Now this is leiomyoma uterus is a, अभी ठीक से अगर देखोगे ना क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है, यूटेरस की बात हो रही है और नीचे
देखो, बेनाइन ट्यूमर ऑफ यूटेरस, कैंसर ऑफ हाइपोथैलेमस, ट्यूमर ऑफ सर्विक्स एपिथेलियम, कैंसर ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। अब क्वेश्चन में यूटेरस दिया है तो फिर क्यों इधर उधर जाना? इट इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ यूटेरस विच डू नॉट स्प्रेड। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है यूटेरस की वो बल्ज आउट हो जाती है, उसकी आउटग्रोथ हो जाती है। इट इज अ बेनाइन ट्यूमर विच डू नॉट स्प्रेड, राइट? सो क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर एंड इट्स इफेक्ट। अगेन सेम एंड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड। तो यहाँ पर फिर एक बार वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने इसको उल्टा कुछ कहा था, कुछ याद है? अभी का अभी तो हुआ था। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू दिस इज सी फॉर कैनाबिनॉइड्स, इजंट इट? सो हियर फर्स्ट में हमें जवाब मिल जाता है, इट इज कैनाबिनॉइड्स। अभी मैंने ऐसा सी ड्रॉ किया था उल्टा। इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, सो ए इज द राइट आंसर। If you want to look at the rest of the option, you can see मॉर्फिन है क्या? ये यम जो अपन ने ड्रॉ किया था, नहीं है। कोकेन, कोका अल्कोलॉइड्स की तो वैसे भी डायग्राम नहीं दी वाली। स्मैक, नहीं, ये भी फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन वेरी फाइन। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। इरेडिकेट मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है अभी। तो ये क्यों हो सका? ड्यू टू एक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे इसका वैक्सीनेशन करवाएगा इसलिए। दूसरा ऑप्शन कहता है ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी डेवलप बाय अस, मतलब हमें उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसके वजह से। तीसरा, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले इसकी वैक्सीन की खोज हो चुकी है इसलिए। या फिर इंजेक्टेबल सैक वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वॉज इजीली अवेलेबल। तो हमें ये समझना होगा कि सैक वैक्सीन तो बेसिकली पोलियो की वैक्सीन है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको वैक्सीन को खोज होके कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑटो इम्यूनिटी, नहीं, ऑटो इम्यूनिटी होती तो वैक्सीन की ज़रूरत ना होती। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत बड़े पैमाने पे इसका वैक्सीनेशन हुआ है, दैट इज व्हाई स्मॉल पॉक्स इज टोटली इरेडिकेटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर। अब कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस। क्या बोलते हैं? सभी के सभी ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह फैलने वाले मेटाजेनेसिस वाले होते हैं क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। कैंसर शो मेटास्टेसिस, ठीक है, कैंसर मेटास्टेसिस शो करता है। तीसरा, कैंसर सेल शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। मैंने कल बोला था नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है कौन सी? कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, मतलब सेल डिवीजन एक पॉइंट पर आकर के रुक जाता है। क्यों? अगर सेल की ओवर क्राउडिंग होती है, सेल एक दूसरे के टच करने लगते हैं तो सेल डिवीजन रुकना, इसे हम कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। तो कैंसरस सेल तो इस प्रॉपर्टी को लूज कर जाते, खो देते हैं इसको, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल वायरसेस आर ऑन्कोजेनिक। अब सभी के सभी वायरस ऑन्कोजेनिक है ऐसा कहना गलत होगा। सभी के सभी वायरस ऑन्कोजेनिक नहीं हो सकते। काफी सारे वायरस है, कॉमन कोल्ड, अब वो क्या ऑन्कोजेनिक है? ऑन्कोजेनिक माने क्या? जो सेल डिवीजन के कंट्रोल को लूज करवा सकते हैं, वो वायरस को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक। सो कैंसर शो मेटास्टेसिस, ये है सही जवाब। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नाउ दिस एक्चुअली नॉट इन एनसीईआरटी, आई थिंक इट इज फ्रॉम no, it is there in NCERT as well, but in some different chapter. It is Catharanthus roseus. ठीक है, NCERT में से, लेकिन इस चैप्टर में से नहीं है, किसी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आता है। ये विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग्स, दीज आर ओके। सो दे कम्स फ्रॉम दिस Catharanthus roseus. Need not to look at the rest of the option for such question at least. How is ascariasis transmitted? Ascariasis कैसे ट्रांसमिट होता है? बाय एयर, मॉस्किटो, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इन्फेक्टेड नीडल। क्वाइट सिंपल, इट इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, आप लोगों जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा है वो मेरे साथ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे उनको जवाब झट से आ जाएगा। दोज हु आर नॉट, दे जस्ट एटलीस्ट लिसन, उनको कम से कम सुनना तो चाहिए। लिसन, दे शुड लिसन केयरफुली। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। LSD, मॉर्फिन, कोकेन, निकोटीन। ठीक है, अभी देखते हैं। लेट मी पिक अप द ब्लैक कलर। ओके, LSD क्या है? LSD कल भी हमने देखा था, इट इज हेलुसिनोजन, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। मॉर्फिन तो अभी हमने काफी बार देखा है। मॉर्फिन, कोकेन, निकोटीन, ऑल दीज आर डिस्कस। तो मॉर्फिन जो है क्या कर रहा है? वो मॉर्फिन का काम क्या है? मॉर्फिन हमने उसको जो अब डिस्कस किया था वो क्या था कि बेसिकली क्या कहते हैं उसे, पेन किलर के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। नहीं,
तो यहाँ पर क्या देखेगा, पेन किलर कौन हो सकता है जो किसे सप्रेस कर सकता है. ओके, सो मॉर्फिन must be this CNS depressant, isn't it? Then कोकेन का काम क्या है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे डोपामाइन है उसको ये करने वाला. और निकोटीन फाइनली इट इज देयर which affect on this cardiovascular system, right? So accordingly A goes for 2, B goes for 1, that is yes, only first one. Okay, next question. Infective stages of malarial parasite are found in. Infective stages माने एक infected मॉस्किटो है तो उसके कौन से पार्ट में उसके जो स्पोरोजॉइड स्टेज है वो होंगे. सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन, हिमोलिम, स्टमक वॉल. yesterday itself we have completed this one, so right answer is option 1. did not to explain, इसका पूरा जो है लगभग मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया था कल के लेक्चर में. Now here onwards some assertion reason type of question. Epstein-Barr virus is an oncovirus. Reason, it stimulates the growth of cancer. ठीक है, तो Epstein-Barr virus, तो Epstein-Barr virus it is a particular type of virus. What it can cause? It can cause variety of types of cancer like Hodgkin's lymphoma, then Burkitt lymphoma, then nasopharyngeal carcinoma is there. तो ऐसे कई तरह के वो कैंसर कॉज कर सकता है. कौन? एप्स्टेन बार वायरस, a particular type of virus, just to remember the name, nothing else. Now it stimulates the growth of cancer. What do you think? It's fine, वो कैंसर की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है. तो दोनों चीज़ें सही है और दूसरी चीज़ पहले असर्शन को जस्टिफाई भी कर रही है. What I can say? A must be the answer, isn't it? Next, HIV infected person are prone to opportunistic diseases. Reason, immune system weakens during HIV infection. तो ये भी चीज़ कल डिस्कस हुई थी कि HIV जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है, उसे काम नहीं करने देता ठीक से. अब अगर उसे काम नहीं करने देगा तो क्या होगा? What will happen? Yes, very simple one. बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं. हेल्पर टी लिम्फोसाइट अगर काम नहीं कर पाएगी तो बी लिम्फोसाइट को मैसेज ही नहीं मिलेगा कि कोई एंटीजन आया है, और उसके वजह से एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट HIV इन्फेक्शन, इफ देयर इज HIV इन्फेक्शन in the last stages, then body cannot understand if there is some kind of infection, and that is why multiple infection occur. So those infections, they are called as opportunistic infections. Okay, so assertion is fine, no problem with this one. Immune system weakens, yes, this is also true and a proper explanation as well. So again answer will be A. Next assertion, histamine is involved in the allergic and inflammatory reaction. हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व है. हिस्टामाइन इज वैसोडाइलेटर. नाउ हिस्टामाइन इज अ वैसोडाइलेटर. वैसोडाइलेटर क्या है? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि फुलाने वाला. मतलब ब्लड वेसल जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, उनका वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम बढ़ जाता है. इसके वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा. अब ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो उसके एलर्जी के रिएक्शंस या फिर इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं. सो बोथ थिंग्स आर अगेन फाइन, बोथ आर ट्रू. सेकेंड इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. आंसर मस्ट बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम सीरम आर होमोजीनस. रीजन, monoclonal antibodies are homogeneous immunological reagent. Look at this year of the question, 2013. As I told you, आपको 2013 के बाद के जो क्वेश्चन है काफ़ी ठीक ठाक लगेंगे. नॉट श्योर, लेकिन फिर भी एक प्रोपोर्शन अच्छा खासा रहेगा. ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? ये एंटीबॉडीज सेपरेटेड फ्रॉम द सीरम और होमोजीनस. अगर हम सीरम में से एंटीबॉडीज अलग करते हैं तो वो सभी के सभी एक ही टाइप के रहेंगे, ऐसा कहने का मतलब है. विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा. अलग अलग किस्म के होंगे. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर होमोजीनस इम्यूनोलॉजिकल रीजेंट. अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं? अगर हमने खास करके कोई एंटीजन इंजेक्ट किया है और खास एक किस्म के एंटीबॉडीज थ्रू RDNA टेक्नोलॉजी अगर बना रहे तो उन एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल. ठीक है, इसमें जो इंड्यूसिंग एंटीजन है वो एक स्पेसिफिक है, तब जो तैयार हो गया वो जाहिर सी बात है इट विल बी होमोजीनियस. सो रीजन सीम्स टू बी फाइन, रीजन सही है एंड असर्शन गलत है. ठीक है, नाउ टिल 2014 और 15 आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, तब ये ऐसी चीज़ें हुआ करती कि असर्शन सही और रीजन जो है वो ऐसे गलत. ठीक है, तो व्हाट यू कैन से क्योंकि हमारे जो असर्शन रीजन के ऑप्शन है वो कैसे A B C D
assertion true, reason true, proper explanation. दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. पहला सही है, दूसरा गलत है. पहला गलत है, दूसरा सही है. ये था 2014-15 के पहले. और ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन रहते थे पहले assertion रीजन को, और उसमें ये रहता था डी ऑप्शन खास करके. तो इसलिए हमें इसका जवाब लिखना पड़ेगा डी. ठीक है. नेक्स्ट वन, इंटरफेरॉन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस. इंटरफेरॉन इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस. क्या होते हैं इंटरफेरॉन? Interferon, these are the protein produced by a cell which is already infected with virus. So what is its role then? Now these protein, they can protect the neighboring cell which are yet to be infected. तो उनका इन्फेक्शन होना बाकी है, ऐसे सेल्स को वो बचा सकते हैं. They can provide immunity to the neighboring cells. So interferon are effective against viruses. This is true. बिल्कुल सही है. रीजन, प्रोटीन which can be synthesized only by genetic engineering are effective against viruses. ये तो गलत हो गया. ठीक है. तो ऐसे इसमें क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग में से बने हुए जो प्रोटीन है वही वायरस के अगेंस्ट अच्छे इफेक्टिव है. नथिंग लाइक दैट. ऐसी कोई बात नहीं है. अपनी बॉडी जो बनाती है दरअसल वही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलरली अगेंस्ट वायरस. ओके. सो असर्शन ट्रू, रीजन इटसेल्फ रॉन्ग. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमॉर्टल अंटिल बॉडी इन विच दे रिसाइड डाइज. कैंसर सेल्स अगर देखा जाए तो वर्चुअली इमॉर्टल है, माने उनको डेथ नहीं है. कब तक? अंटिल बॉडी इन विच दे रिसाइड डाइज. तो जिस बॉडी के अंदर है जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक कैंसर सेल की डेथ नहीं होनी है. बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें कि कैंसर सेल इसी तरीके से, बिकॉज दे हैव गॉट पावर ऑफ सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ सेल डिवीजन. सो बिफोर दे डाई दे डिवाइड. दैट्स इट. रीजन क्या कहता है? कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द जीन्स रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन साइकिल. व्हाट यू से? कैंसर इज कॉज्ड बाय द डैमेज टू जीन्स रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन. दोनों सही है, लेकिन क्या ये उसका रीजन है? रीजन हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉपर रीजन. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. नेक्स्ट, assertion, cocaine has a potent stimulating action on a central nervous system producing a sense of euphoria and increased energy. तो कोकेन का एक्शन दिया है. कोकेन किस तरीके से एक्शन काम करता है? सो इट इज सेड दैट कोकेन हैज अ स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. कोकेन का जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, ये कहता है. प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी. ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है. देन रीजन, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स intentionally during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induces active immunity. दूसरा स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है कि उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन मतलब ए तो आने से रहा. ए कैन नॉट बी द आंसर इन एनी केस. इट कुड बी बी, सी और वॉट एवर. लेट अस सी. तो रीजन कहता है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स इंटेंशनली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन. तो जैसे वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जो माइक्रोब इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे पोलियो का है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी. तो बिल्कुल सही है कि अगर अपने बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो या फिर नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर फाइन बट नथिंग टू डू विद द प्रीवियस वन. एक्सप्लेनेशन नो वे. सो आंसर शुड बी बी. नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, इसका आंसर सी दिया था की में, विच वाज रॉन्ग. Next, 27. Artificially acquired passive immunity result when antibodies or lymphocyte produced outside the host are introduced into a host. ठीक है. Artificially acquired passive immunity, ये कल चीज़ें मैंने बोली थी. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव. पैसिव कब कहते हैं हम? जब एंटीबॉडीज बाहर से आते हैं. आर्टिफिशियली कब कहते हैं? अगर मदर टू फीटस आ रहे तो वो नेचुरल हो जाएगा. लेकिन हम किसी स्नेक वेनम के लिए अगर किसी और के एंटीबॉडीज यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल हो गया. इजंट इट? आर्टिफिशियल पैसिव. व्हेन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट आर इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट. बिल्कुल ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट. सेकेंड क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट गिवन टू अ पेशेंट विद जेनेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब देखो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया हमने किसी पेशेंट को, और उसकी जो जेनेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी है उसे हमने करेक्ट कर दिया. मतलब उसमें कोई एंटीबॉडीज तैयार करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो नहीं थी, तो वो हमने बोन मैरो के थ्रू करेक्ट करवा दिया.
तो क्या हम इसे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा दोनों स्टेटमेंट से ये अगेन सेम थिंग, पहले का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, सो अगेन आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा, नाउ हियर इट इज रॉन्गली स्पेल्ड, लेट्स गेट इट करेक्टेड। This should be alpha, like this. Alpha interferon are used in treatment of cancer. Okay, reason, alpha interferon provoke the immune system to identify tumor cell. ठीक है, अभी अल्फा इंटरफेरॉन की अभी हमने बात की थी। तो बेसिकली अगर सेल इम्यून सिस्टम को समझ में आता है कि कौन सी सेल कैंसरस है, देन आवर बॉडी और पर्टिकुलरली किलर टी सेल्स दे कैन अटैक ओवर दिस ट्यूमरस सेल, बट दिस एबिलिटी to identify the cancerous cell, it is aided by or it is supplemented by this alpha interferon. Okay, so that is why they are useful in the treatment of cancer. So both things are true and a proper explanation, so answer must be A. Next, dust particle when come in contact with the respiratory tract lead to sneezing, running nose, redness of eyes, etc. ठीक है, डस्ट पार्टिकल एलर्जी वाले जो सिम्टम्स बताए, स्नीजिंग या रनिंग नोज, रेडनेस ऑफ आइज, फाइन, बिल्कुल सही है। रीजन, एलर्जिक डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। अभी हमने ये एक क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि हिस्टामाइन इट इज़ अ वैसोडायलेटर, तो इसके वजह से बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें सही है और दोनों चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रही है एक दूसरे को, आंसर मस्ट बी ए। असर्शन, पापावर सोम्निफेरम इज कल्टिवेटेड टू ऑब्टेन ड्रग, ठीक है, सही है। रीजन, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स लैटेक्स, बिल्कुल सही है, और दैट इज व्हाई पापावर सोम्निफेरम इज कल्टिवेटेड फॉर गेटिंग ड्रग्स, व्हिच इज दैट ड्रग, मॉर्फिन, व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ दैट प्लांट। सो अगेन आंसर मस्ट बी ए, क्वाइट सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट 31, किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ नॉन मैचिंग डोनर गेट रिजेक्टेड। यस, वी नो दिस, अगर गलत डोनर आ जाता है तो बिल्कुल अपनी बॉडी, भले ही वो किडनी हमारे मदद के लिए आती है लेकिन हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीजन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट रिजेक्टेड। नाउ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इज इट मीडिएटेड बाय बी? नो, इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, नॉट बी। सो रीजन इज रॉन्ग, assertion is true, answer must be C, isn't it? Next one, assertion, gonorrhea is a dreaded disease. Reason, it cannot be completely curable even if diagnosed at early stage. क्या बोलोगे, is it a dreaded disease? क्या ये dreaded disease है? No, it is not dreaded disease, it is curable. It cannot be completely curable. Both things are damn wrong, damn lie. So what you can say? 2018 में तो जो था 4 ऑप्शन ही रह गए, 5 और 5 ऑप्शन नहीं रहा, so D will be the answer. नेक्स्ट, लास्ट डॉट वन, बेसिकली एड्स ऑकर्स बाय रेट्रोवायरस हुज आरएनए इज एनवेलप, बिल्कुल सही है, एड्स में आरएनए होता है और उसके सराउंडिंग में प्रोटीन कोट होता है, तो असर्शन तो ट्रू है। इट एंटर इनटू द सेल एंड फॉर्म न्यू वायरसेस, ये भी सही है, बट इज इट एनीवे एक्सप्लेनिंग द मींस फॉर्मिंग अ रीजन? नो, नॉट एट ऑल, सो बी इज अ आंसर फॉर दिस वन। दोनों चीजें सही है लेकिन नॉट एन एक्सप्लेनेशन। Last one, Trichomonas vaginalis causes infection only in women's. Yes, obviously, Trichomonas vaginalis ये जो है ये क्या करता है, वेजाइना को इन्फेक्ट करता है। ऑब्वियसली फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसी को इन्फेक्ट करने वाला है, इजंट इट? तो मेल में तो ये चीज़ नहीं है, तो फिर बिल्कुल चांस भी नहीं है। व्हाट इज दिस ट्राइकोमोनास? इट इज अ प्रोटोजोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्फेक्शन कॉल्ड एज वेजाइनाइटिस, ओके, इन्फेक्शन टू द वेजाइना। तो एज अ स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। सेकंड क्या कहता है, ट्राइकोमोनास बैकेलिस लिव्स इन अ बकल कैविटी, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्राइकोमोनास बैकेलिस, वी लाइक टू नो दिस प्रोटोजोन, इट लिव एज अ कमेंसल, you understand commensalism, so it lives in mouth of the human being as well as in many other primates, okay, so this is true। मतलब अभी तक इसके कुछ पैथोजेनिक होने के कोई भी सबूत नहीं मिले, मतलब इंसान को इसका कोई डैमेज भी नहीं है ना ही कोई बेनिफिट है, लेकिन उसे तो सब जो है रेडीमेड मिल रहा है, दैट इज व्हाई वी से इट इज कमेंसलिज्म। बोथ ऑफ द थिंग आर फाइन बट नथिंग टू डू विद द प्रीवियस वन, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, आंसर विल बी बी। Okay, so with this question we come to end of this session, human health and diseases. So within 44 minutes we have completed this entire session.
So once again, now some student may easily identify that now this is the time when sir will start giving lecture कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, नहीं करो. See, I am no way in the mood to say something like that, but only have something to say that utilize this time properly, right? Exam will be there surely. Exam तो होनी है, चाहे इस महीने का तो कोई चांस नहीं बनता है. थोड़ा जितना टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ये सोचो कि आपको एक रिपीटर के तौर पर सब एक्स्ट्रा मिल रहा है विदाउट रिपीटिंग. ये चीज़ समझो आप. सी, आई एम अ पर्सन हु ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज इनटू कैलामिटीज. तो ये पूरी दुनिया के लिए कैलामिटी है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर साबित हो सकती है अगर आपने चाहा तो. ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ करना एक ही है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो. किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी इसमें से ढूंढ सकते हो? तो ओनली वे, सोचो अगर आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट जो 3 मई का जो डेट था उसी दिन हो जाता तो क्या आपका उतना स्टडी हुआ था? क्या उतना नहीं हुआ था. तो आपको अच्छी बात है कि बहुत सारा समय मिल रहा है, जैसे किसी रिपीटर को मिलता है. सो टेक इट पॉजिटिव एंड ट्राई टू इंक्रीज नंबर ऑफ रिविजन्स. ओके, आई एम ऑलवेज विथ यू. यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. ओके, सो विथ दिस नोट लेट अस वाइंड अप दिस सेशन. बहुत ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, बट बीइंग टीचर कुछ तो आदतें हैं, ऐसी भी नहीं जाएगी. ओके, so let us wind up this session. Thank you for watching this video. Thank you very much.